سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں اپنے ایمان کا اقرار ہم رسولوں کے عقیدے کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا اور دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر جا گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر اور کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ کلام مقدس پر پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا تیسرا باب 8ویں آیت مقدسہ ہم تلاوت کریں گے۔ پادری شفاقت سے میری درخواست ہے وہ بلند آواز سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا تیسرا باب 8ویں آیت مقدسہ۔ جو قرآن کے کلام میں یہ مرقوم ہے اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں خداوند ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ 8ویں آیت متی 3 باب 8۔ بس توبہ کے موافق حل لاؤ۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ تشریف رکھیں۔ آج بڑا اچھا اور خوبصورت دن ہے۔ نئے سال میں خدا نے ہمیں داخل کیا ہے اور اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں، اور نئے سال کا ملنا عام لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا کام ہو گیا کہ وجہ کام ہو گیا؟ ایک کم ہو گیا ایک بڑھ گیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں خدا نے ہمیں ایک نیا سال یا ایک اور سال دیا ہے، اس کا مطلب سال زیادہ ہوا ہے۔ دونوں طرح سے ہم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ساری زندگی کا ایک سال کٹ گیا تو کبھی کہتے ہیں ایک سال ود گیا ہے، اور میں کہتا ہوں ہمیں ایک اور سال دیا گیا اور اس میں خدا ہمیں دے کر کچھ کہتا ہے۔ اکثر ہم شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں، توبہ کا پیغام ہوتا ہے، شکر گزاری کا پیغام ہوتا ہے، اور پھر بلیسنگ کا پیغام ہوتا ہے، لیکن میں آج کہوں گا آج کا پیغام ہے حساب کتاب۔ کچھ گیج کا پیغام ہے کہ خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں خدا پوچھتا ہے، اس لیے ایک سال اور اس نے ہمیں دیا ہے ہماری زندگی میں۔ مقدس متی رسول اپنی انجیل مقدس میں تحریر کرتے ہوئے ایک جملہ ایک آیت بیان کرتا ہے، پس توبہ کے موافق کیا لاؤ؟ حل لاؤ۔ یہودی اور فریسی اور فقیر سارے توبہ یاب، نام کو توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے مقدس متی رسول، نام کو کچھ اور کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، پس توبہ کے مطابق کیا کرو؟ حل لاؤ۔ اس کا مطلب ان کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، پہلے سے توبہ یافتہ ہیں، پہلے سے خدا کے لوگ ہیں، اور پہلے سے وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ متی رسول ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ توبہ کے موافق کیا کرو؟ حل لاؤ۔ اس کا مطلب ہے
وہ کہتا ہے آپ پہلے خدا کے لوگ ہیں, جو کچھ خدا نے کرنے کے لیے دیا ہے اس کے مطابق پھل. ایک ہم گیت گاتے ہیں, بھیس بدلا دل کا بدلنا. اس کا مطلب اوپر سے بندہ فرق ہو اور اندر سے فرق ہو, ایسا خدا پسند نہیں کرتا. اور یہودی یا بنی اسرائیل قوم بھی ایسی ہی تھی, اور ان کو خدا کے بندہ نے کہا, مقدس یوحنا نبی نے, توبہ کے مطابق پھل لاؤ, بار بار توبہ نہ کرو. اس کو میں اس سے کہوں گا, پھل کا مطلب ہے گروتھ, پھل کا مطلب ہے ترقی, اور پھل کا مطلب ہے سرفرازی. جیسے کلی جب کھلتی ہے تو اس کی زندگی کا آغاز, پھول جب کھلتا ہے اس کی زندگی کیا ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, پھر وہ آگے جا کے پھل بنتا ہے. اس لیے نیا سال خدا نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم خدا میں ترقی کریں. توبہ کے موافق کیا کریں, پھل لائیں, توبہ کے مطابق ترقی کریں, سرفراز. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس سال ترقی کریں, سرفراز ہوں, آگے بڑھیں, تاکہ خدا خوش. اس کا مطلب خدا کو ہمارا سرفراز ہونا, ترقی کرنا, بڑھنا اور پھل پیدا کرنا بڑا پسند. اس لیے خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے. تو یہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے دیا ہے, آگے بڑھنے کے لیے دیا ہے, توبہ یافتہ ہم پہلے. تو خدا چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں, جس پہلو میں ہم پیچھے ہیں آگے بڑھیں. دو لوگوں نے کوشچن کیا مقدس یوحنا نبی سے, لوکا کے انجیل اس کا 3واں باب, اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ کیسے ہم توبہ یافتہ زندگی گزاریں, اور کیا پھل ہے جو مقدس یوحنا نبی کہتا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے, محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا, اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا, جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لے. پھل کیا ہے؟ ایمانداری, وفاداری اور فرما برداری. ایک شخص ایکسپریشن لکھتا ہے, a faithful leader is a fruitful leader. وفادار رہنما کیسا رہنما بنے گا؟ A faithful leader become fruitful leader. ایک شخص لکھتا ہے, جو پھل ہے یہ ہمیں اس وقت پھل لگے گا یا اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے جب ہم گروتھ کے پروسیس کو سمجھیں کہ ترقی کیسے کریں, آگے کیسے بڑھیں. اس کا مطلب پھل جو ہے یہ ترقی ہے, اور خدا چاہتا ہے ہم ترقی کریں. اور کن پہلوؤں میں ترقی کریں؟ غلطی خط میں لکھا ہوا ہے, اس کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے, روح کا پھل کیا ہے؟ روح کا پھل کیا ہے؟ سب کو آتا ہے, روح اس کے پھل ہیں. روح کا پھل محبت, اور کیا ہے؟ خوشی ہے, اطمینان ہے, تحمل ہے, مہربانی ہے, ایمانداری ہے, علم ہے, پرہیز ہے. یہ ہے روح کا پھل. اور خدا چاہتا ہے ان پھلوں میں ہم آگے بڑھیں یا اپنی روحانی زندگی میں ترقی کریں, جسمانی زندگی میں ترقی کریں. مقدس یوحنا نبی سے جن لوگوں نے سوال کیا جسمانی بات, جسمانی زندگی میں وفادار رہنا, جہاں آپ کام کرتے ہیں اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس میں کتنے پھل تھا, اس میں پھل کیا ہے؟ ایماندار. اور یہاں پھل کیا ہے؟ نمبر 1 محبت, اور اس کے اندر برانچز ہیں. خوشی ہے. کس میں پھلدار ہونا ہے؟ اگر سارا سال بندہ پریشان ہی رہے کسی فکر دے وچ تے پھل لگے کہ نہیں لگے.
फिर है इत्मीनान। इत्मीनान एक फल है जो खुदा चाहता है ईमानदार शख्स की जिंदगी में लगे। नंबर 3 तहम्मुल। और तहम्मुल एक फल है, उसकी ब्रांच है फल की, और इसका मतलब है बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना। जब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा इत्मीनान खत्म हो जाएगा, हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी, हमारा जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो कमजोर होता चला जाएगा और खत्म होता चला जाएगा। जब हम इख्तिलाफात देना चाहे दिलां च तो मोहब्बत ज्यादा होगी घटेगी कि ज्यादा होगी? इधर मतलब फल जड़ा वे कमजोर हो रहा है। और खुदा चाहता फल हमारी रूहानी तरक्की कम होती चली जा रही है। जब इख्तिलाफात दिलों में आएंगे और ये तहम्मुल का फल या इत्मीनान का फल या मोहब्बत का फल ये हमारी जिंदगी में खत्म होता चला जाएगा, और खुदा ऐसे दरख्त को नापसंद है। एक दरख्त के पास यीशु मसीह जाते हैं कुछ खाने के लिए, अब वहां लिखा पत्ते तो बड़े हरे भरे थे लेकिन फल उसमें क्या कहा यीशु मसीह ने? आइंदा कुछ में फल खुदा ने पसंद किया, यीशु मसीह ने नापसंद किया। इसका मतलब बेफल शख्स को, बेफल ईमानदार शख्स को खुदा नापसंद करता। जो शख्स तरक्की नहीं करता उसको खुदा नापसंद करता। जो शख्स बर्दाश्त नहीं करता उसकी जिंदगी में फल नहीं है। जब बर्दाश्त नहीं करेगा इख्तिलाफात आएंगे, रिलेशन खराब होता चला जाएगा, और ईमानदार में जो भी शख्स है वो बेफल होगा, और बेफल शख्स खुदा को नापसंद है। और फिर है मेहरबानी। और मेहरबानी ऐसा फल है जो किसी शख्स पर आसान किया जाए, किसी की जरूरत को पूरा किया जाए, किसी की मदद की जाए, ये भी रूहानी फल है जो ईमानदार शख्स की जिंदगी में खुदा देखना चाहता है। नंबर 6 है नेकी। मेहरबानी और नेकी एक ही बात है, ओवरलैप करती है, लेकिन नेकी से मुराद है बेबस शख्स की खिदमत या उस पर आसान। मेहरबानी बेबस शख्स की बात नहीं है, किसी भी शख्स पर आसान करना, किसी की जरूरत को पूरा करना। और नेकी से मुराद है हेल्पलेस शख्स की मदद करना, जिससे कुछ हमें रिटर्न मिलता हुआ नजर नहीं आता, ऐसे शख्स की हेल्प करना नेकी का फल है। फिर है ईमानदारी, और फिर है हिलम, फिर है परहेज करना। ये फल खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है। और फल से मुराद मैंने कहा ग्रोथ, तरक्की। फूल खिलता है, उसकी जिंदगी का आगाज होता है, फिर वो फल बन जाता है, और फल के अंदर बीज होते हैं, और बीज ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ती के लिए, सरफराजी के लिए। एक शख्स की मिसाल यीशु से दी लूका के इंजील में, उसका 13वां बाब उसकी 6ठी आयत अगर पढ़ लें, बड़ी खूबसूरती से उस शख्स के बारे में बयान किया गया है। और फिर अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हुए हम देखेंगे हम कैसे फलदार हैं या नहीं। ये हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी पे डिपेंड करता है। इसलिए बड़ी खूबसूरती से ये तमसील यीशु मसीह ने कही 13वें बाब की 6ठी आयत में लिखा। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया, और ना किसकी तलाश में है? पाकिस्तान में दरख्त लगाने वाला, पौधे लगाने वाला शख्स। यीशु किसकी तलाश में? खुदा किसकी तलाश में? फल, ग्रोथ। इसका मतलब खुदा हमारी सरफराजी से खुश हो, हमें सरफराज देखना चाहता है बस, और बेबस नहीं देखना चाहता। हमें खुदा पीछे या शिकस्त खुदा नहीं देखना चाहता। वो हमेशा हमारी ग्रोथ और तरक्की के बारे में,
फल देखता है, और फल देखकर खुदा खुश होता है। और यहाँ भी एक दरख्त है और एक पौधा ऐसा है, लिखा है अंजीर का दरख्त लगाया था, और वो उसमें फल ढूंढने आया, और इस पर बागबान से कहा कि देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के दरख्त में क्या लेने आता हूँ, फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसको क्या कर दे, बेफल शख्स को, दरख्त को मालिक खुदा नापसंद है। जिस शख्स में ग्रोथ नहीं है, खुदा उससे नाखुश, और खुदा की डिमांड और तकाजा और उसकी ये ख्वाहिश है, ईमानदार शख्स ग्रो करे, तरक्की करे, फल डाले। और फिर इसको कहते हैं, इसको काट डाल, लेकिन जमीन को भी क्यों ये रोके रहे हैं। इसका मतलब वो नुकसानदेह है। जो शख्स ग्रो नहीं करता, फल नहीं पैदा करता, खुदा के लिए वो नुकसान। कभी कभी कहते ठीक है, कोई गल कर लांगे, दुआ कर लांगे, इबादत, कोई गल। इसलिए खुदा उसको नापसंद करता है। और फिर जो बागबान है, माली है, वो दरखास्त करता है 1 साल इसको और रहने दे, मैं इसके गेट ताला खोदूंगा और खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो खैर नहीं, इसके बाद इसको एक मौका, 1 साल खुदा और देता है। हम अपनी जिंदगी में खुदा के लिए ग्रो करें, तरक्की करें, ताकि वो खुश हो और हमारी ब्लेसिंग को वो कायम रखे, जारी रखे, और हमें क्या करे, ब्लेस करे। इसलिए आए अपनी जिंदगी पर गौर करते सोचें, दुआ करने में कितना आगे बढ़ा, दूसरों के साथ ताल्लुकात में कितने अच्छे रहे हैं, ग्रो किया मैंने, फैमिली में मेरा क्या रवैया है, कैसा फल है, गुस्से वाला भरा हुआ फल है, कड़वा फल है, या के मीठा फल। खुदा की खिदमत में मैं कैसे फलदार हूँ, पिछले सालों में तरक्की की है, या वहां का वहां हूं, या पीछे गया। दुआया जिंदगी में कैसा फलदार, आगे बढ़ा हूं या पीछे गया हूं। बाइबल स्टडी में जो रूटीन के हम बाइबल पढ़ते हैं अपनी पर्सनल दुआया जिंदगी में या पर्सनल लाइफ में, उसमें मैं आगे गया हूं। चर्च की इंतजामी खिदमत में मैं आगे गया हूं, पीछे गया। हर पहलू पर आप सोच सकते हैं मेरी जिंदगी में फल लगा है, नहीं लगा, फल है या नहीं है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी फल। हालेलुया। कौन कौन चाहता है फलदार जिंदगी? फलदार जिंदगी गुजारने के लिए खुदा जस्ट हमें कलाम करेगा, स्टेप हम ले लेंगे। फल हमने पैदा करना है, खुदा ने पैदा करना। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और तुम्हें मुकर्रर किया ताकि फल पैदा और तुम्हारा फल बहुत सा। उसने जस्ट हमें बुलाया है, जस्ट हमें अलग किया है, सिर्फ हमें उसने अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही के लिए बुलाया है। फल पैदा करना, ग्रो करना, तरक्की करना, ये हमारा। उसने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, आगे बढ़ना ये हमारा। उसने हमें अपनी प्रस्तश के लिए बुलाया है, स्ताइश करने के लिए बुलाया है और उसकी अजमत को बयान करने की बुलाया है। आगे फल पैदा करना या ग्रो करना ये हम पे डिपेंड है। कोई दूसरा शख्स हमारी जिंदगी में कोई फल पैदा नहीं कर सकता या लगा सकता। दुआ की रूटीन में आपने कायम रहना या बढ़ना है। कोई शख्स आपको बढ़ा सकता है? किसने बढ़ना है? खुद बढ़ना है। इसलिए खुदा ने हमें खिदमत के लिए, चर्च के लिए, बादशाही के लिए, इंतजाम के लिए, तरक्की के लिए बुलाया है। फल जो है ये हम पे डिपेंड करता है,
ये हमने अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना है। और पिछले साल मैं क्या करता रहा हूँ, मैं क्या करती रही हूँ, कितने वफादार खुदा के साथ रहे, कितने वफादार चर्च के साथ रहे, कितना ग्रो मैंने अपनी खिदमत में किया, अपनी बुलाहट को किस हद तक मैं अंडरस्टैंड कर सका, ये हम पे डिपेंड करता है। इसकी पौलुस रसूल कुरिन्थियों के लोगों को खत लिखते हुए कहता है, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने आपको भी पहुंचा दी कि यीशु जिस रात को खुदा ने उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर शरीर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगार के वास्ते यही किया करो। फिर उसने मैं का प्याला में कहा, ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। और उस फिर कहता है, जो किस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, खुदावंद की मौत का क्या करे, इजहार करे जब तक वो ना आ जाए। ग्रो कब तक करना है, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। स्टॉप नहीं हो सकते जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। खुदा चाहता है हम बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं और सरफराज होते चले जाएं, ताजगी पाते चले जाएं, इत्मीनान से बढ़ते चले जाएं, अल्लाही ब्लेसिंग से शेर और आसूदा होते चले जाएं, खुदा की बादशाही के लिए बहुतों को करीब लाने का सबब बनते चले जाएं। अब फिर पौलुस रसूल कहता है, जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो इसके खाने पीने से क्या ठहरेगा, कसूरवार ठहरेगा। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे और परखे, टेस्ट करे अपना, मैं कहां से बेकल रह गया हूं, कहां से वीक हूं, किस पहलू में मैं पीछे हूं। और एक नया साल खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है ताकि हम अपने आप को जांचें और परखें और खुदा की हजूरी में शाबाश हासिल कर सकें। खुदा ने इसलिए हमें बुलाया ताकि उसकी हजूरी में शाबाश हासिल हो। इसलिए नया साल अगर खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा है, हमें सोचने की जरूरत है, जैसे पौलुस कहता है कि हम कितना अपने खुदा के साथ वफादार हैं, दुआया रूटीन में कितने वफादार हैं, बाइबल पढ़ने में कितने वफादार है, चर्च की जिम्मेदारियों में कितने वफादार है, खानदानी जिम्मेदारियों में जो खुदा ने में सौंपे कितने वफादार है, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन में कितने हम मजबूत रहे, बेपैसे में कितने ध्यानदार रहे, और खुदा की पहचान में, उसकी गवाही में कितने हम वफादार रहे, कितना ग्रो किया, कितने फलदार हम रहे। ये हम पे डिपेंड करता है, हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए खुदा ने एक साल और हमें दिया है ताकि मालिक ताला को दे और खाद डाले और हम फलदार हो जाएं, तरक्की करें। आमीन। तो आए अपनी आंख बंद करते हुए थोड़ी देर की सोचेंगे, जिस पहलू में आप समझते हैं मैं बेफल रहा हूं या रही हूं, उसमें मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकता हूं। जिस पहलू में मैंने ग्रो नहीं किया, तरक्की भी कर पाया नहीं कर पाई, उस